Last time we have done the what are various type of tokens like identifier, keywords, so on. Today we will start what are the scope of variable, and every variable in the PHP is declared with a dollar sign. So scope of variable is defined as its range in the program under which it can be assessed. In other words, scope of variable is a portion of a program within which it is defined and can be assessed. स्कोप किस ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 टाइप ऑफ स्कोप है। वन इज लोकल, देन ग्लोबल, देन स्टैटिक। So first start with local variable. The variable that are declared within a function are called local variable for that function. These variable have their scope only a that particular function in which they are declared. Means variable ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। and that variable cannot be accessed outside the function. And the variable declaration outside the function with the same name is completely different from the variable declared inside the function. ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬੋਥ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਪ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਦਾ PHP ਕੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ PHP ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ HTML ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ, PHP ਕੋਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਵਰਡ, then this is the name of function, here is the variable number जिस दी वैल्यू कितनी है 45। ये लोकल वेरिएबल अपना क्योंकि ये वेरिएबल मैं इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर इको कीवर्ड ने नाल मैं इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देनी है। लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन इन्वर्टेड कॉमे, then डॉलर साइन, then नेम ऑफ वेरिएबल। फंक्शन क्लोज कर देना। ਇੱਥੇ मैं फंक्शन की करता कॉल करता। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 45। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 45 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, दूसरी एग्जांपल की है, in the second example again I have written the PHP code, then function name my test, और इस दे विच मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया lang जिसकी वैल्यू की है PHP। और जदों भी आप स्ट्रिंग लिखनी है या कोई करैक्टर लिखने है उसनों डबल इन्वर्टेड कॉमा दे विच एनक्लोज करना। दैन डिस्प्ले करवाता मैं इको वैब डिवेलपमेंट लैंग्वेज, ये मैं एक स्ट्रिंग लिखती जी एज इट डिस्प्ले करवानी है। फिर उस तो बाद डॉलर वेरीएबल का नाम। ठीक है, ये लोकल वेरीएबल तो इतने लोकल वेरीएबल की वैल्यू में डिस्प्ले करवाता। दैन फिर मैं फंक्शन क्लोज करके इतने फंक्शन की करती कॉल करती। नो इतने मैं एक कमेंट लिखा, सिंगल लाइन कमेंट यूजिंग $lang local variable outside the function will generate an error। ये मैं एक कमेंट लिखा, इतने अपने को कोड है 9th लाइन च। हुण मैं इत्थे जिहड़ा इको वर्ड लिखा और वैल्यू डिस्प्ले करवानी है लैंग वेरीएबल, लेकिन जिहड़ा लैंग वेरीएबल है उसका स्कोप कित्थे है,
इनसाइड द फंक्शन, लेकिन मैं उसनूं यूज़ कित्थे कर रहा आउटसाइड द फंक्शन। इसका की मीनिंग है, जिहड़ा लोकल वेरीएबल मैं फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, उस वेरीएबल नूं मैं बाहर या आउटसाइड द फंक्शन नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, जे मैं यूज़ करांगा तो इंटरप्रेटर की विल जनरेट सम एरर। ठीक है, पहली आउटपुट अपने को आ जाएगी पहले वेरीएबल की, जिहड़ा मैं इनसाइड द फंक्शन लिखा, डैट इज इको वैब डिवेलपमेंट लैंग्वेज डॉलर लैंग की वैल्यू कितनी है PHP। तो पहली स्टेटमेंट की आउटपुट आ जाएगी, लेकिन जो मैं वही सेम लोकल वेरीएबल आउटसाइड द फंक्शन यूज़ करांगा तो उत्थे अपने को एरर आ जाएगा अनडिफाइंड वेरीएबल। ठीक है, क्योंकि ये वेरीएबल का स्कोप सिर्फ की है लोकल है, नॉट ए ग्लोबल। ठीक है, एवरीबडी क्लियर? एनी क्वेरी? Okay, next is the global variable. Global variable are the variable that are declared outside the function. These variable can be accessed anywhere in the program. To access the global variable within a function, to access the global variable inside the function, use global keyword. जे ग्लोबल वेरीएबल तुसी इनसाइड द फंक्शन यूज़ करना तो ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा अपन, ठीक है, बिफोर द वेरीएबल। हाउएवर दिस वेरीएबल कैन डायरेक्टली असेस्ड और यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन विदाउट एनी कीवर्ड। जेड़ा ग्लोबल वेरीएबल आप डिक्लेयर करांगे, इफ यू वांट टू यूज इनसाइड द फंक्शन then use global keyword. If we want to use the global variable outside the function, then there is no need to use any keyword to search the global variable. Let us take the example. First PHP code. I have declared the variable $name. ठीक है, this is the global variable. I have declared variable outside the function, and this is the function name. Then again I want to use this variable, global variable, inside the function. Then I have declared as a global. Now echo variable inside the function as $name. और जरा नेम वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल कितने डिक्लेयर है आउटसाइड द फंक्शन, वो मेरा की है ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन मैं इस इनसाइड द यूज करना चाहना तो मैं इसनों की डिक्लेयर करांगा एज ए ग्लोबल। ठीक, फिर मैं इस फंक्शन की करता कॉल करता ग्लोबल अंडरस्कोर वैर। जदों इसनों मैं कॉल करांगा तो फंक्शन दे विच ये वेरीएबल की होएगा वैल्यू डिस्प्ले करेगा। फिर इसे ही वेरीएबल नूं मैं इको वेरीएबल आउटसाइड द फंक्शन, इत्थे मैं सेम वेरीएबल की वैल्यू इत्थे डिस्प्ले करवा रहा, लेकिन इत्थे मैं ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं किया। आ वेरीएबल मेरा आउटसाइड द फंक्शन है, आ वेरीएबल मेरा की है इनसाइड द फंक्शन। हुण जदों मैं इस नूं रन करांगा ब्राउज़र के अंदर, जदों मेरा फंक्शन इंटरप्रेट होएगा, आ फंक्शन कॉल करेगा इसने इसनूं की कीती कॉल की। जदों इसनूं कॉल करेगा $नेम वेरीएबल ग्लोबल बना देगा इत्थे, तो फिर उसकी वैल्यू कितों फैच करेगा ग्लोबल वेरीएबल, इत्थों वैल्यू फैच कर लेगा। तो आउटपुट की डिस्प्ले कर देगा GHG खालसा कॉलेज।
फिर फंक्शन इत्थे की हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उस तो बाद लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होएगी। हुण 10 नंबर लाइन दे विच फिर मैं वेरीएबल का नाम लिखिया। हुण ये वेरीएबल अगेन आउटसाइड द फंक्शन लिखिया। इहदा मीनिंग है जो आउटसाइड द फंक्शन लिखांगे तो मैनू ग्लोबल कीवर्ड यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगेन ये वैल्यू कितों फैच करेगा, इतों वैल्यू फैच करेगा। अगेन वैल्यू की आएगी, GHG खालसा कॉलेज। Now what we have to remember, without using global keyword, if we try to access the global variable inside the function, it will generate an error that variable is undefined। ਹੁਣ इसका की मीनिंग है, जे मैं आ ग्लोबल कीवर्ड नहीं लिखता, ठीक है, और मैं इत्थे वेरीएबल नूं असैस करना चाहना जिहड़ा कि मेरा ग्लोबल है, तो वो वेरीएबल कदे भी असैस नहीं होएगा। ठीक, ब्राउज़र दे विच आपां नूं एक एरर आ जाएगा, दैट एरर इज वेरीएबल इज द अनडिफाइंड। तो ग्लोबल वेरीएबल नूं जदों भी इनसाइड द फंक्शन यूज़ करना तो ग्लोबल कीवर्ड नाल वेरीएबल नूं डिक्लेयर करना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगेन PHP कोड, वेरीएबल डिक्लेयर किया $name, ठीक है, आ वैल्यू देती उसकी, दिस इज द ग्लोबल वेरीएबल। हुण अपने कोल की है, फंक्शन मेरा ग्लोबल वेरीएबल, उसके अंदर मैं वेरीएबल नूं यूज़ किया, लेकिन हुण मैं ग्लोबल डिक्लेयर नहीं कर रहा सी। इको वेरीएबल इनसाइड द फंक्शन $name। तो उसका की मीनिंग है, इस वेरीएबल नूं मैं इनसाइड द फंक्शन यूज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, इत्थे फंक्शन क्लोज किया, मैं इत्थे फंक्शन नूं कॉल करता। हुण अपने कोल की है, जदों ग्लोबल वेरीएबल इनसाइड द फंक्शन यूज करांगे तो अपने कोल एरर की आ जाएगा, अनडिफाइंड वेरीएबल इन दिस प्रोग्राम ऑन लाइन नंबर 5। ठीक है, इसका की मीनिंग है, आउटसाइड द ग्लोबल वेरीएबल यूज ईजिली कर लेने, इनसाइड द फंक्शन ये यूज करना तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करना जरूरी है। ठीक है जी, ये तो हो गया अपना लोकल स्कोप ते ग्लोबल स्कोप। हुण आपां यूज करना स्टैटिक स्कोप। स्टैटिक स्कोप की है, it is the feature of PHP to delete the variable once it is complete its execution and memory is free। ठीक है, जदों कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता या फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता तो जो PHP है वो वेरीएबल की मैमरी नूं डिलीट कर देंदा या फ्री कर देंदा एक। ठीक है, सम टाइम we need to store the variable even after the completion of a function execution। ठीक है, कई बार अपने को सिचुएशन इदां दी हुंदी है कि मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट भी हो जाए लेकिन कंप्लीट होने तो बाद भी जिहड़ा वेरीएबल की वैल्यू है, लोकल वेरीएबल की वैल्यू जिहड़ी स्टोर्ड है वो वैल्यू हमेशा रिटेन रहे, मीनस वो दोबारा डिलीट ना हो। तो उसके लिए अपने को अनदर स्कोप हुंदा, डैट इज द स्टैटिक वेरीएबल। ये आप ऑलरेडी C++ या जावा दे विच पढ़े हुए हैं। सो दिस वेरीएबल इज नोन एज द स्टैटिक वेरीएबल। जिहड़ा स्टैटिक वेरीएबल है उसका जिहड़ा स्कोप है वो लोकल हुंदा, लेकिन उसकी जिहड़ी लाइफ है वो ग्लोबल हुंदी। ठीक है, आप एग्जांपल स्टडी करते हैं, स्टैटिक वेरीएबल एग्जिस्ट ओनली इन द लोकल फंक्शन but it does not free its memory after the program execution। ठीक है, leave the scope। मीनिंग यह है कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन जो फंक्शन एग्जीक्यूट होंदा उदों जिहड़े लोकल वेरीएबल होंदे आ फंक्शन अंदर वो मैमरी फ्री हो जाती।
ठीक है। दोबारा फिर जो कॉल करांगे फिर मैमरी एलोकेट होएगी, फंक्शन कंप्लीट हो गया, मैमरी फिर फ्री होगी। जिन्नी बारी फंक्शन कॉल करांगे उन्नी बार मैमरी एलोकेट होएगी। जो फंक्शन कंप्लीट हो जाता फिर उस तो बाद मैमरी फ्री अप हो जाती। ये होंगी लोकल मैमरी की, लोकल वेरीएबल की प्रॉपर्टी। लेकिन आप करना स्टैटिक वेरीएबल। स्टैटिक वेरीएबल दे विच की है, सिर्फ मैमरी फर्स्ट टाइम एलोकेट होए, फंक्शन चाहे कंप्लीट ही हो जाए, वो मैमरी हमेशा रिटेन रहे। ठीक है, एग्जांपल करते हैं। PHP फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक $1 स्टैटिक वेरिएबल। हुण मैं स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता नंबर 1 जिसकी वैल्यू 3 है, और मेरा लोकल वेरिएबल है सिंपल जिसकी वैल्यू की है 6 है। फिर मैं जेडे स्टैटिक वेरिएबल है उसने इंक्रीमेंट करता बाई 1। उस तो बाद मैं फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसनू भी इंक्रीमेंट करता। ठीक है, पहला स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर लोकल वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मैं स्टैटिक वेरिएबल नू इंक्रीमेंट किया बाई 1 यूनिट, फिर सेम नॉन स्टैटिक वेरिएबल नू मैं इंक्रीमेंट करना। ठीक है, थोड़ी जी मिस्टेक हैगी इत्थे। ठीक है, नंबर 1 मेरा स्टैटिक है तो इसनू स्टैटिक कर लो। ठीक है, इत्थे नॉन स्टैटिक। ठीक है, मैं सही करके अपलोड कर देंगे इसमें। ठीक है, उस तो बाद मैं फिर स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाई, फिर नॉन स्टैटिक की वैल्यू डिस्प्ले करवाई। नाउ इत्थे मैं फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल किया, फंक्शन का नाम की है स्टैटिक वेरिएबल। फिर इत्थे मैं सैकेंड टाइम फंक्शन कॉल किया। जो फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल किया, नंबर 1 की वैल्यू कितनी है 3, नंबर 2 की वैल्यू कितनी है 6, नंबर 1 ने इंक्रीमेंट किया, इत्थे वैल्यू कितनी आ गई 4, नंबर 2 ने इंक्रीमेंट किया, वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इत्थे मेरे को डिस्प्ले कितना हो गया 4, इत्थे मेरे को डिस्प्ले कितना हो गया 7। तो फर्स्ट टाइम स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई 4 और नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई 7। फिर मैं दोबारा कॉल किया इसनू, जो दोबारा कॉल करांगे जेड़ा वेरिएबल अपना नंबर 2 है, सो फिर जो दोबारा कॉल किया स्टैटिक नंबर 1 है उसकी वैल्यू की होएगी 4 होएगी। ठीक है, वो पुरानी वैल्यू की करेगा रिटेन करेगा क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन जो मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो पुरानी वैल्यू रिटेन नहीं करेगा, दे विल ऑलवेज इनिशियलाइज द वेरिएबल। दोबारा फिर इसको इनिशियलाइज करेगा और दोबारा फिर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 6 रहेगी। फिर इंक्रीमेंट किया इत्थे नंबर 1 तो वैल्यू कितनी आ गई 5, नंबर 2 ਨੂੰ इंक्रीमेंट किया वैल्यू कितनी आ गई 7। तो सैकेंड आउटपुट मेरे को की आ गई 5 एंड 7। ठीक है, दिस इज द आउटपुट। हाँ जी, एनी क्वेरी? एवरीबडी क्लियर? सर स्टैटिक वेरिएबल्स रिटेन होंगे दोबारा? स्टैटिक वेरिएबल अपनी प्रीवियस वैल्यू ਨੂੰ स्टोर करके रखता, मतलब हर एक बार वो इनिशियलाइज नहीं होएगा। ठीक है, ਇਹ ਜਦੋਂ फस्ट वारी कॉल करांगे एक बार इनिशियलाइज हो गया, उस तो बाद ਜਿਹੜੀ वैल्यू उनकी होएगी बस वही वैल्यू रहेगी हमेशा। लेकिन ਜਿਹੜਾ नॉन स्टैटिक वेरिएबल ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ कॉल करोगे ਜਿਹੜੀ वैल्यू उसਨੂੰ पहली बारी ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ वही वैल्यू दोबारा उसमें देगा फिर। ठीक है, जिवें ਇੱਥੇ 6 है, जिन्नी बारी कॉल करोगे हमेशा इसमें दोबारा 6 मिलता रहेगा। लेकिन स्टैटिक दे विच हरेक बार 3 नहीं मिलेगा। जे तुसीं इसनूं 4 करता इंक्रीमेंट करके तो दोबारा 4 मिलेगी इसमें, यह दूसरी बार इनिशियलाइज नहीं होएगी वैल्यू। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी सर। ठीक है, ये अपने अज टोटल 3 स्कोप हो गए, अज के लिए आप इन्ना ही करांगे।
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।